Hello and welcome everyone to a new lecture of our series Electricity and Magnetism. Today we are discussing about the applications of integral theorems. So far we are studied four fundamental theorems or four fundamental integral theorems. First we are studied about the fundamental theorem of calculus. Then we move forward towards the fundamental theorem of gradient and then fundamental theorem of divergence, or we can say it as Gaussian divergence theorem, and finally we are reach to the fundamental theorem of curl, or named as Stokes theorem. ओके तो बेसिकली अभी तक हमने चार फंडामेंटल थ्योरम के बारे में पढ़ा है, जिनमें से अब आज हम इनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो चार फंडामेंटल थ्योरम अभी तक हमने पढ़ी हैं वो बेसिकली डेल का अलग अलग ऑपरेशन है। अगर लेफ्ट हैंड साइड को इन चारों की चारों थ्योरम्स के आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑपरेशन है एफ डैश एक्स del by del x of some function f which is a function of x is differential, that is the work of del operator. In the theorem of gradient, del is operating, vector del is operating on a scalar quantity. In divergence theorem, vector del is with dot product with some vector field v, and in curl theorem again the vector operator क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर फील्ड v। अगर ध्यान से आप इन चारों थ्योरम्स को देखें तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इन चारों की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसी में डेल ऑपरेटर है, और राइट हैंड साइड को अगर देखें आप ध्यान से तो उनमें कहीं भी आपको डेल का ऑपरेशन नज़र नहीं आएगा। सेट एफ बी माइनस ए नो डेल, TB minus A, no operation of del. Surface closed surface integral of V dot ds, that is flux, no del. And closed line integral of any vector field or function, there is no del. So the operation of del in all four fundamental theorem, or basically we can say that more conveniently the last three, that is gradient, divergence, and in Stokes theorem or curl theorem, the operation of del is always operated, or del operator is always operated in left hand side. There is no operation of del into the right hand side. Right hand side is del less, you can say del less, or vector operator del less. ओके, सो दिस इज द मैथमेटिकल कंसेप्ट बिहाइंड इट। तो हम जो बात करेंगे वो हमने शुरू किया था द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से, और हम पहुंचे हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल पे। तो बेसिकली इनमें ये जो चार हमारे पास इंटीग्रल थ्योरम्स हैं, इनमें से जो ये तीन हैं बाद वाली, द लास्ट थ्री, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर इनमें भी कंपेरेटिवली आप जानना चाहते हैं तो ये जो लास्ट टू हैं, द गॉसियस डाइवर्जेंस थ्योरम एंड द कर्ल थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, इज द मोस्ट पावरफुल थ्योरम in the sense of paper like electricity and magnetism. Okay, now move forward. बेसिकली जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, यानी कि आप ये देख पा रहे होंगे, ऐसे आप देखिए, जो वॉल्यूम इंटीग्रल है अगर आप उसे सरफेस इंटीग्रल में बदलना चाहते हैं, ओके, सो वॉल्यूम इंटीग्रल चेंज्ड इनटू द सरफेस इंटीग्रल, तो आपको गॉसियस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करना पड़ेगा, एंड दिस इज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ओके, और अगर आपको सरफेस टू
लाइन इंटीग्रल चेंज करना है किसी भी इंटीग्रल को, तो आपको स्टोक्स थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। और फाइनली अगर आप पाथ इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल से पॉइंट्स पर आना चाहते हैं, ओके, तो आपको ग्रेडियंट थ्योरम यूज करना पड़ेगा। नाउ you can see on your screen, here is volume integral to surface integral. You have to be used Gauss's divergence theorem. When you turn surface to line, you should be use Stokes theorem, and when you turn from line to point, you should be use gradient theorem. Okay, see on your screen, volume to surface conversion, surface to line conversion, line to point conversion, divergence theorem, Stokes theorem, and gradient, the fundamental theorem of gradient. So that is the concept. Okay, now the most common thing जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा इन सारी जो भी हम इंटीग्रल थ्योरम्स पढ़ते हैं इनमें वेक्टर ऑपरेटर डेल ऑपरेट होता है, और राइट हैंड साइड इज डेल लेस, हियर इज डेल लेस। और दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इन थ्योरम्स में जो वेक्टर ऑपरेटर का ऑपरेशन है वो केवल एक बार हुआ है, डेल टी वंस ऑपरेशन, डेल डॉट वी वंस ऑपरेशन, डेल क्रॉस वी वंस। मीन्स डेल ऑपरेटर को हमने केवल एक ही बार किसी फंक्शन के डॉट प्रोडक्ट में, किसी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में, या किसी स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेशन किया है, ऑपरेट किया है। मीन्स उसका कहीं भी हम डबल ऑपरेशन नहीं देखते। यानी जो बेसिकली जो इंटीग्रल थ्योरम्स हैं उनमें केवल हम क्या देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल डेल एक बार ऑपरेट होगा, वो चाहे वो फिर स्केलर के ऊपर हो रहा है, किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट हो रहा है, या तो फिर किसी वेक्टर के साथ क्रॉस कर रहा है। ओके, you all know that these three operation, del dot t is known as gradient, del dot v is known as divergence, and del cross v is known as curl of a vector field. Okay, if we operate the del operator twice, अगर यहाँ तो हम ये देख रहे हैं, पहली बात तो ये कि इन जो इंटीग्रल थ्योरम्स हम स्टडी करके आए हैं इन सब के लेफ्ट हैंड साइड में ही डेल ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है, राइट हैंड साइड इज डेल लेस, फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड वन इज दैट कि अगर आप डेल ऑपरेटर को देखें जो लेफ्ट हैंड साइड में यूज किया गया है वो भी केवल एक ही बार यूज किया गया है, यानी जो डेल का ऑपरेशन है वो केवल एक बार किया गया है। डेल डॉट टी वंस ऑपरेशन, डेल डॉट वी वंस ऑपरेशन, डेल क्रॉस वी वंस ऑपरेशन। ओके, तो अगर हम डेल को दो बार ऑपरेट करें किसी भी स्केलर पे या किसी वेक्टर फंक्शन पे, तो हमारे पास क्या परिस्थितियां, क्या स्थितियां, क्या सर्कमस्टांसेस पैदा हो सकते हैं उसके बारे में हमें अभी आगे देखना है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हियर इज, इफ वी ऑपरेट वेक्टर ऑपरेटर डेल ट्वाइस, देन व्हाट हैपन, तब क्या होगा? तो देखिए, बहुत ध्यान से इस सिनेरियो को हमें देखना है। यहां देखिए, अगर हमारे पास कोई फंक्शन स्केलर फंक्शन है
तो स्केलर फंक्शन पे केवल डेल को ऑपरेट करने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम उसकी ग्रेडियंट के रूप में हम उसको अप्लाई करें। ओके, तो अगर किसी स्केलर फंक्शन एफ पर आप डेल का ऑपरेशन करते हो तो आपके पास फंक्शन आता है डेल एफ, डेल ऑपरेटेड ऑन अ स्केलर फंक्शन एंड द फिनोमिना इज नोन एज ग्रेडियंट। ओके, योर ऑपरेशन इज नोन एज ग्रेडियंट। लेकिन अब अगर आपके पास आपने स्टार्ट किया था एक स्केलर फंक्शन से, लेकिन जब डेल को आपने यहां ऑपरेट किया तो आपके पास अभी अवेलेबल है एक वेक्टर फंक्शन, बिकॉज डेल एफ और ग्रेडियंट इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब आपके पास कोई वेक्टर है तो वेक्टर पे आप कोई भी वेक्टर है आपके पास, आर्बिट्रेरी कुछ भी समझ लीजिए, तो किसी भी वेक्टर पे आप डेल को कितनी तरह से ऑपरेट कर सकते हो। आप उसको डाइवर्जेंस के फॉर्म में ऑपरेट कर सकते हो या तो आप उसे कर्ल की फॉर्म में ऑपरेट कर सकते हो। तो आप इसे डेल एफ ना समझ के ऐसा समझिए कि आपके पास कोई वेक्टर है ए, तो वेक्टर फंक्शन पर आप डेल को कितनी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप वेक्टर फंक्शन, कोई भी वेक्टर फंक्शन है, कोई भी वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड फोर्स कुछ भी समझ लीजिए, उस पर आप केवल डेल को दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो उसकी डाइवर्जेंस की फॉर्म में या तो उसके कर्ल की फॉर्म में। तो अगर डेल एफ को आप ऐसा कंसीडर करें कि ये केवल क्या है, एक वेक्टर है ए, तो आप उसका क्या ले सकते हैं यहां, डाइवर्जेंस। डेल डॉट डेल एफ means divergence of vector field del f, and second operation is del cross del f, that is curl of vector field del f. These are two operations. So del dot del f is gives you del square f, and this is known as DOG. DOG, not dog. It is D for divergence, O for off, G for gradient. Divergence of gradient. Here is, what is this? Gradient. और जब gradient है, और what is this? Del operator. And relation between these are signified by dot, यानी कि डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ग्रेडियंट के साथ, दैट इज डाइवर्जेंस द फिनोमिना ऑफ ग्रेडियंट। ओके, सो दिस गिव्स रिजल्ट डेल स्क्वायर एफ। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज डेल क्रॉस डेल एफ, दैट इज कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन del f. So this is known as curl of gradient because the original function is in the form of gradient. So curl of gradient, COG, C for curl, O for off, G for gradient, curl of gradient, and curl of gradient is always 0. हम इसे आगे प्रूव भी करके दिखाएंगे कि 0 क्यों होता है, बट फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम इंस्टेंस, आप इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि COG कॉग इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब हमारे पास कोई वेक्टर है ए, अब उस पर हमने वेक्टर को ऑपरेट कर दिया, डेल वेक्टर को। ठीक है, अब किसी भी वेक्टर फंक्शन पे हम डेल ऑपरेटर को कितनी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, या तो हम उसके डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हैं या तो फिर हम उसे कर्ल फाइंड कर सकते हैं। तो या तो हम इस वेक्टर फंक्शन की डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हैं या तो फिर हम इसका कर्ल फाइंड कर सकते हैं। जब हम इस वेक्टर फंक्शन की डाइवर्जेंस को फाइंड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फंक्शन आता है वो एक स्केलर की फॉर्म में आता है, बिकॉज डेल डॉट वी इज ऑलवेज गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो जब हमने वेक्टर ऑपरेटर डेल को किसी वेक्टर फंक्शन पे ऑपरेट किया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फंक्शन आया, दो तरीके से हम उस वेक्टर फंक्शन पर डेल को ऑपरेट करते हैं, एक डाइवर्जेंस की फॉर्म में, एक कर्ल की फॉर्म में। तो डाइवर्जेंस की फॉर्म में जो हमारे पास रिजल्टेंट फंक्शन आता है वो एक स्केलर होता है, और जो कर्ल की फॉर्म में हमारे पास जो रिजल्टेंट फंक्शन आता है वो एक वेक्टर होता है, बिकॉज डेल क्रॉस एनी वेक्टर फंक्शन इज ऑलवेज गिव्स ए वेक्टर फंक्शन।
ओके, अब हमारे पास सिनेरियो ये है कि ये हमारे पास एक स्केलर है और ये हमारे पास एक वेक्टर है। अब हमें ये देखना है कि हम इस स्केलर पर कितनी तरह से डेल को ऑपरेट कर सकते हैं, और नीचे वाला जो हमारे पास एक वेक्टर है, इस पर हम डेल कितनी तरह से यूज करें। तो हम जानते हैं कि स्केलर पर, अगर किसी स्केलर पर आपको वेक्टर ऑपरेटर डेल को ऑपरेट करना है तो वो उसके ग्रेडियंट के फॉर्म में हो सकता है। केवल एक ही तरीका है किसी भी स्केलर पर डेल को ऑपरेट करने का। ओके, तो दिस गिव्स डेल and there is no dot, no cross, del operating on del A. Okay, del dot A, sorry, del dot A. So this is known as God, भगवान, no, भगवान नहीं, gradient of divergence. This operation is known as gradient of divergence. ओके, हमारे पास यहाँ डाइवर्जेंस था और इसका हमने यहाँ क्या ले लिया, ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस। और जो दूसरा तरीका है हमारे पास, जो डेल क्रॉस ए हमने उस वेक्टर का फंक्शन के साथ किया, तो डेल क्रॉस ए से जो रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिजल्टेंट फंक्शन हमें मिलेगा वो एक वेक्टर की फॉर्म में होगा, और अगर वो एक वेक्टर की फॉर्म में है तो उस पर हम डेल ऑपरेटर को दो तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, एक डाइवर्जेंस की फॉर्म में, एक कर्ल की फॉर्म में। ओके, तो जब हम इसे कर्ल की फॉर्म में, डाइवर्जेंस की फॉर्म में इस पे डेल ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं तो उस ऑपरेशन को कहा जाता है DOC, यानी डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। व्हाट इज दिस, डाइवर्जेंस, सॉरी, व्हाट इज दिस, कर्ल, और यहाँ क्या कर दिया हमने, कर्ल का डाइवर्जेंस, सो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। और दूसरा तरीका है कि इसी वेक्टर फंक्शन का जो रिजल्टेंट वेक्टर फंक्शन है उस पर हम वेक्टर ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दे, तो दिस ऑपरेशन इज नोन एज COC, कर्ल ऑफ कर्ल। ओके, तो वी आर स्टडीज these operations one by one and signifies each and every one. Okay, so first operation हमारे पास है ये। जब हम देखिए, जब भी हम इंटीग्रल थ्योरम का हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रल थ्योरम के एप्लीकेशंस हैं कि इंटीग्रल थ्योरम में केवल डेल ऑपरेटर को लेफ्ट हैंड साइड में एक ही बार ऑपरेट किया गया, आइदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस और इन द फॉर्म ऑफ कर्ल। लेकिन अगर हम उसी डेल ऑपरेटर को एक से ज्यादा बार किसी स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तब क्या होता है, पहली बार हमने ऑपरेट किया, दूसरी बार ऑपरेट किया, फिर अगर उसी डेल ऑपरेटर को हम किसी वेक्टर फंक्शन पर एक बार ऑपरेट किया, दूसरी बार ऑपरेट किया, तो जो रिजल्ट आए उसका इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो पहला जो वेक्टर जो हमारे पास ऑपरेशन है वो ये है DOG, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, ये वाला ऑपरेशन है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट अगर आपको निकालना है तो यहां आपके पास क्या है कि एक ऑपरेटर है डेल और दूसरा फंक्शन है आपके पास ग्रेडियंट की फॉर्म में। ठीक है, तो आप पहले वाले डेल को अभी डेल ही लिखते हैं और डॉट करते हैं इस डाइवर्जेंस का। तो डाइवर्जेंस को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, I डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के डेल एफ बाई डेल जेड। ओके, और डेल को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसका वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट हम किसके साथ ले लेंगे, इसके साथ ले लेंगे। ये फंक्शन आया समझ में, कहाँ से आया, ये फंक्शन आया डेल एफ मीन्स डेल आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और राइट हैंड साइड से हमने इस पे क्या कर दिया, एक स्केलर क्वांटिटी को ऑपरेट कर दिया। तो जब ये फंक्शन रिजल्ट के फॉर्म में आएगा तो आएगा आई डेल एफ बाई डेल एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर एफ की मल्टीप्लाई इस फंक्शन के साथ होगी तो जे डेल एफ बाई डेल वाई और प्लस के डेल एफ बाई डेल जेड, दैट इज द रिजल्टेंट फंक्शन। ओके, सो डेल की वैल्यू हमें पता है ये होती है और डॉट प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास ये फंक्शन है।
ठीक है। तो जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का डॉट प्रोडक्ट होगा इस फंक्शन के साथ, तो रिजल्टेंट आएगा डेल स्क्वायर एफ डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर। जे का डॉट प्रोडक्ट सर्वाइव करेगा जे के साथ, तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा डेल टू एफ ओवर डेल वाई स्क्वायर। और के का जो डॉट प्रोडक्ट है वो सर्वाइव करेगा के वाले फंक्शन के साथ, तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा डेल टू एफ बाई डेल जेड स्क्वायर। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसी फंक्शन में से हम f कॉमन ले ले तो हम लिख सकते हैं डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन एफ स्केलर फंक्शन f. Okay, we can write this. So del dot del f is basically gives us del square f, and what is del square? Is this operator, del 2 by del x square, del 2 plus del 2 by del y square plus del 2 by del z square, and this function or operator is known as Laplacian. Okay, लाप्लासियन ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में इसका यूज है, तो जब क्वांटम मैकेनिक्स आप आगे के सालों में पढ़ेंगे तो वहां आप इससे वेल नोन होंगे. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन. नाउ मूविंग टू अनदर वन दैट इज नोन एज कर्ल ऑफ ग्रेडियंट. आपके पास ग्रेडियंट था और आपने उसका क्या लिख कर दिया, उसके साथ वेक्टर ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, एंड द ऑपरेशन इज नोन एज curl of gradient. Okay, so moving to this topic, curl of gradient, COG, the operation is del cross del f equal to 0. Okay, so integrate this vector function because this is a vector function. Concentrately on the screen, del cross del f. Del f is always the gradient, and gradient is always a vector function, and a vector function is always in the cross product of another vector function. So the resultant is also a vector function. Okay, so हमारे पास अभी ये हमारे पास वेक्टर फंक्शन है और इसको हमें सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है. मीन्स इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है ओवर ए सरफेस. ओके, सो लेट्स डू दिस. दिस इज द ऑपरेशन सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस वेक्टर ऑपरेटर इज सेम, और सॉरी वेक्टर फंक्शन इज सेम, डेल क्रॉस डेल एफ डॉट ds, बिकॉज हम यहाँ इस इंटीग्रेशन में इसका सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं. और ये जो फंक्शन है यहाँ डेल एफ, ये ठीक उसी तरह से यूज होगा जैसे कोई क्या हो, वेक्टर हो. तो ये साइड को अगर आप ध्यान से देखें, इस वाली साइड को, तो ये वाली साइड डेल क्रॉस डेल एफ, और डेल एफ क्या है, एज ए वेक्टर बिहेव करेगा, डॉट ds. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टोक्स थ्योरम. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टोक्स थ्योरम. सी हियर, दिस इज. केवल क्या अंतर है कि यहां जो वेक्टर फील्ड हमने माना था v, उसकी जगह वहां क्या है, केवल डेल f. अगर रिप्लेस करें आप इसी फंक्शन में तो आपके पास रिजल्टेंट फंक्शन क्या आएगा, सरफेस इंटीग्रल s डेल, रखिए v की जगह डेल f डॉट ds. दिस द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, so here we are, this is the left hand side of स्टोक्स थ्योरम. तो अगर स्टोक्स थ्योरम को ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं. सी हियर,
स्टोक्स थ्योरम किस काम आती है? जब हमें सरफेस इंटीग्रल को कहाँ बदलना हो, लाइन इंटीग्रल, तो हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे? स्टोक्स थ्योरम। तो हम वही तो कर रहे हैं वहां। तो आपको यहाँ स्टोक्स थ्योरम को यूज करना है, और स्टोक्स थ्योरम को जब आप यूज करेंगे तो स्टोक्स थ्योरम का आप राइट हैंड साइड भी देख लें कि राइट हैंड साइड जब सरफेस इंटीग्रल किसी भी वेक्टर फील्ड का आप लेते हैं तो राइट हैंड साइड में मिलता है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ उसी वेक्टर फंक्शन का। और यहाँ वेक्टर फंक्शन v नहीं यूज कर रहे, अभी हम वेक्टर फंक्शन यूज कर रहे हैं डेल f, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ f। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ l डेल f डॉट dl। लेट्स सी। Here is the result. So by the use of Stokes theorem, the left hand side of this integral theorem can be converted into the right hand side of this theorem. Okay, that is closed line integral of any vector function along a path is equal to this integral. और इसी को हम ग्रेडियंट थ्योरम को यूज करते हुए कहां बदल सकते हैं? इसी को हम कहां बदल सकते हैं? पॉइंट्स में बदल सकते हैं। एफ बी माइनस एफ ए, से ए एंड बी आर एनी 2 points. Okay, so this can be converted into this way. Okay, by the use of gradient theorem, by the use of gradient theorem. But the path is closed, so why fb equal to fa? ये जो पाथ है ये पूरा का पूरा क्लोज्ड है, यहाँ कहीं भी खुला नहीं है। अगर ये पाथ ऐसा होता, मान लीजिए यहाँ होता, तो मैं इस पॉइंट को यहाँ मैं कह देता A और इस पॉइंट को कह देते B, तो ये ठीक था, ये सरवाइव कर जाता। लेकिन अभी क्या हुआ है कि A और B कोई 2 पॉइंट्स नहीं है, बल्कि ये पाथ क्या है? क्लोज्ड है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो क्लोज्ड होने की वजह से जो एफ बी है वो केवल एफ ए, या एफ ए कहें तो एफ ए ही है, और एफ बी कहें तो एफ बी है, यानी एफ बी इक्वल टू एफ ए। और जब ये हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास आता है नल, 0। दैट मीन्स सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट, that surface integral of curl of gradient dot ds equal to 0. अब because surface is arbitrary surface का मतलब क्या है कि अगर आप ये सरफेस इंटीग्रल इस सरफेस के अलोंग निकाल रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट ये आएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि सरफेस आप हमेशा यही यूज करें, आप कोई भी आर्बिट्रेरी सरफेस है, मान लीजिए मेरे पास ये सरफेस, इसको मैंने नाम दे दिया एस, तो किसी भी आर्बिट्रेरी सरफेस के लिए, मान लीजिए मेरे पास सरफेस ये है इस बार, तो मैंने इसको नाम दे दिया एस, तो किसी भी आर्बिट्रेरी सरफेस के लिए रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा, इज ऑलवेज होल्ड। दैट मीन्स सरफेस इज आर्बिट्रेरी, और अगर सरफेस आर्बिट्रेरी है तो हमारे पास जो ये इंटीग्रल के अंदर है ये क्या हो जाएगा? 0। बिकॉज, या हम मैथमेटिकली इसको बोलना चाहिए तो हम ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज ds डज नॉट इक्वल टू 0। ये कभी नहीं हो सकता कि सरफेस 0 हो जाए, तो हमारे पास जो अंदर वाला क्वांटिटी है वही क्या होगी? 0। दैट मीन्स डेल क्रॉस डेल एफ इक्वल टू 0। और यही तो है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज 0, ऑलवेज इन द सेंस सिंस सरफेस इज आर्बिट्रेरी। कुछ भी सरफेस ले लीजिए, कोई भी सरफेस, दुनिया का कैसा भी सरफेस ले लीजिए, प्लेन सरफेस ले लीजिए, कर्व्ड सरफेस ले लीजिए, किसी भी प्रकार का सरफेस ले लीजिए, लेकिन ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा। दिस इज ऑलवेज होल्ड। या इसी स्टेटमेंट को जो हम कह रहे हैं, जो हमें ये रिजल्ट बता रहा है कि कर्ल ऑफ
ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। इसी को हम रिवर्स में कैसे कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि ग्रेडियंट इज ऑलवेज कर्ललेस, ग्रेडियंट हमेशा कर्ललेस होता है। ओके, हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि अगर आपको ये प्रूफ करना है डेल क्रॉस डेल एफ, तो आप इस तरह से डिटरमिनेंट फॉर्म में भी आप इसको यूज करके मैथमेटिकली आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये किसके इक्वल टू आएगा, जीरो। और ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा किसी भी आर्बिट्रेरी स्केलर फंक्शन के लिए, किसी भी आर्बिट्रेरी, चूंकि फंक्शन जो यहाँ एफ है वो कैसा फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है। चूंकि ये जो कंसेप्ट है डेल क्रॉस डेल एफ वाला, ये बेसिकली हमारे पास कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था। तो बेसिकली जो फंक्शन था स्केलर एफ, वो कैसा फंक्शन था, एक स्केलर फंक्शन था। उसी स्केलर फंक्शन का हमने ग्रेडियंट निकाला, और ग्रेडियंट का फिर हमने क्या निकाला, कर्ल। तो ऑपरेशन हमें मिला कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, और हमने यहाँ भी लिखा है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या होगा, हमेशा जीरो, जो हमने प्रूफ भी आपको करके दिखा दिया कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज ऑलवेज जीरो। ऑलवेज इन द सेंस कि किसी भी आर्बिट्रेरी स्केलर फंक्शन पे आप इसको ऑपरेट कीजिए तो ये रिजल्ट हमेशा होल्ड करेगा, ऑलवेज होल्ड। ओके, नाउ यहां पर 3 कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है। पहला ये है कि ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट पाथ हैं। पहला मान लीजिए इसे नंबर 1 कहें आप, इसे नंबर 2 कहें, इसे नंबर 3 कहें। तो ये ऑपरेशन कुछ इस तरह से काम करते हैं कि अगर पहला होल्ड करता है तो हमेशा दूसरा होल्ड करेगा, और अगर दूसरा होल्ड करता है तो हमेशा तीसरा ऑपरेशन भी होल्ड करेगा। अब कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्या, पहला ये है कि अगर वर्क डन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ, अगर तो बोलना भी नहीं चाहिए कि ये हमेशा होता ही है कि वर्क डन अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। ओके, अगर ऐसा है तो ऐसा अगर कहीं होल्ड करता है और वेक्टर ए कैन बी रिटर्न एज द ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर, और जो वेक्टर ए है, जहां जो यहाँ वेक्टर फील्ड यूज किया गया है, अगर ऐसा है कहीं, तो जो वेक्टर फील्ड है ए, जिसको हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ के फॉर्म में लिख सके, यानी एक ऐसा वेक्टर फील्ड जिसको ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर के फॉर्म में लिख सकें। हियर इज ए इज any vector field which can be write as the gradient of any scalar function f, del of f। अगर ऐसा है तो उसी वेक्टर फंक्शन a को हम, उसका कर्ल जो होगा वो हमेशा जीरो होगा, उस वेक्टर फंक्शन का कर्ल हमेशा जीरो होगा। इसी बात को हम कैसे कह सकते हैं यहां से यहां जाने में, कि अगर किसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल जीरो है तो वो हमेशा किसी स्केलर के ग्रेडियंट के रूप में लिखा जा सकता है, तो हमेशा किसी ग्रेडियंट के स्केलर के रूप में लिखा जा सकता है। यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए, अगर आप यहां से यहां आना चाहते हैं, या यहां से यहां जाना चाहते हैं, यहां से यहां जाना चाहते हैं, ठीक है, तो शुरुआत मान लीजिए यहां से कर सकते हैं हम, कि अगर आपके पास कोई वेक्टर फंक्शन है a और वो किसी स्केलर के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिखा गया है, तो उस वेक्टर फंक्शन का कर्ल हमेशा जीरो होगा, और अगर उसका कर्ल जीरो होगा तो हमेशा वर्क अराउंड ए क्लोज्ड पाथ भी जीरो होगा, ठीक है। और यहां से यहां जाएंगे तो क्या बोलेंगे आप, कि अगर किसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल जीरो है तो उसे आप हमेशा किसी स्केलर के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और ऐसे वेक्टर फील्ड जिन्हें हम किसी स्केलर के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकें,
ऐसे वेक्टर फील्ड्स को हम या फोर्स को हम कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड या वेक्टर फोर्स कहते हैं। और कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड या फोर्स का कर्ल हमेशा जीरो होते हैं। दोज वेक्टर फील्ड्स विच कैन बी राइट एज द ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज नोन एज कंजर्वेटिव स्केलर फील्ड्स एंड द कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव स्केलर फील्ड is always 0. That is the point which is tapped here as a star. Okay, so this is the second operation. The first one is the Laplacian operator and the second one is the curl of a gradient, and curl of a gradient is always 0. This result is always hold. Okay, now we are moving towards the fourth operation. Although we are with third operation as serial number, but discuss first this, the fourth operation, then third and then fifth. Okay, so now the fifth operation, when del operator operated twice, okay, is the operation of divergence of curl. Divergence of curl, DOC doc, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। कर्ल हो रहा है डेल क्रॉस ए के साथ और उसका हमने क्या लिया है बाहर से, डाइवर्जेंस। तो ये ऑपरेशन भी हमेशा आपको क्या देगा, जीरो। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? ये जो इससे पहले वाला ऑपरेशन हमने सीखा, चूंकि टॉपिक हम पढ़ रहे हैं द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल थ्योरम्स, तो आपने एप्लीकेशन देखा स्टोक्स थ्योरम का। अब यहां देखिए हमारे पास ये ऑपरेशन है। पहली बात तो ये कि ये एक वेक्टर है जो रिजल्टेंट आएगा या फिर एक स्केलर फंक्शन आएगा। तो देखिए अगर हम इस ऑपरेशन पे ध्यान दें बाद वाले हिस्से पे, तो डेल क्रॉस ए मीन्स कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन। तो कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन हमें क्या देता है, इज ऑलवेज अ वेक्टर। एंड डेल डॉट एनी वेक्टर इज गिव्स ऑलवेज अ स्केलर, हमेशा एक स्केलर देता है। तो बेसिकली हमारे पास जो ये यहां ऑपरेशन है ये किसकी फॉर्म में है, एक स्केलर की फॉर्म में है। और अगर ये एक स्केलर की फॉर्म में है तो हम इसका केवल वॉल्यूम इंटीग्रल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल? सी हियर, ये देखिए दिस इज द ऑपरेशन डेल डॉट वी। del is the vector operator and v is any function and divergence of v is always a scalar function। ये क्या देगा ऑपरेशन हमें, यहां भी स्केलर देगा। और स्केलर का हम क्या कर सकते हैं, केवल वॉल्यूम इंटीग्रल। और कभी भी क्लोज्ड इंटीग्रल नहीं होता वॉल्यूम, ये जब आपको वॉल्यूम इंटीग्रल पढ़ाया गया है बताया गया था। ठीक है, तो आपको करना क्या है बेसिकली कि ये जो फंक्शन है जो एक स्केलर की फॉर्म में हमारे पास है, इसका हमें वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना ओवर एनी आर्बिट्रेरी वॉल्यूम। कोई भी हमारे पास एक आर्बिट्रेरी वॉल्यूम है, ये इस शेप का हमारे पास आर्बिट्रेरी वॉल्यूम है, इसके इस रीजन के अराउंड हमें इसका वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करना है। तो अगर इस साइड को आप ध्यान से देखें, दिस इज what signifies it, del dot del cross a is any vector as a vector, क्योंकि del cross a का जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा किसकी फॉर्म में आएगा, एक वेक्टर की फॉर्म में आएगा। तो del dot any vector dito, okay, see here, del डॉट एनी वेक्टर, और एनी वेक्टर उस जो हम
कैलकुलेशन कर रहे हैं वहां क्या है, इस v की जगह क्या रिप्लेस किया हुआ है, डेल क्रॉस a। तो अगर इस v की जगह हम डेल क्रॉस a को रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा डेल डॉट डेल क्रॉस a टीटो। okay, remember this, and now see this, डेल डॉट डेल क्रॉस ए। जब भी डेल क्रॉस ए का ऑपरेशन होगा, चाहे वो कैसा भी ऑपरेशन है, वैसे आप जानते हो जनरली ये क्या होता है, कर्ल। तो ये हमेशा क्या देगा, एक वेक्टर फंक्शन। तो ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है किस थ्योरम की, गॉसियस डाइवर्जेंस थ्योरम की। और गॉसियस डाइवर्जेंस थ्योरम किसी भी वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। सी हियर, गॉसियस डाइवर्जेंस थ्योरम किसी भी वॉल्यूम फंक्शन को, वॉल्यूम इंटीग्रल को किस में चेंज कर देता है, सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देता है। ओके, तो आप यहां इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सी, यहां आपने इस थ्योरम को अप्लाई किया यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। हमने वॉल्यूम इंटीग्रल को कहां चेंज कर दिया, ओवर सरफेस इंटीग्रल। ओके, सो बिकॉज हम इसको क्या मान रहे हैं, डेल क्रॉस ए को एज ए वेक्टर, तो एज ए वेक्टर डॉट ds, दैट इज फ्लक्स ऑफ दैट वेक्टर। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास सरफेस, और कैसा सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है। सी दिस सर्कल, इस सर्कल को देखिए, ये कैसा सरफेस है, एक क्लोज्ड सरफेस है। अब हमें यहां स्टोक्स थ्योरम को यूज करना है। ओके, अब हम जैसे ही इसको स्टोक्स थ्योरम को यहां यूज करते हैं, तो स्टोक्स थ्योरम के यूज करने से ये जो सरफेस इंटीग्रल है ये कहां बदल जाएगा, लाइन इंटीग्रल में। सी हियर, using Stokes theorem you can convert a surface integral into a line integral। ओके, सो हमने वहां स्टोक्स थ्योरम को यूज किया और इस वेक्टर फंक्शन का हमने क्या निकाल दिया, लाइन इंटीग्रल निकाल दिया, जो इस फॉर्म में आया। एंड क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इज ऑलवेज अ जीरो। सो बेसिकली जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या आ गई, जीरो। और फिर से वही, बिकॉज वॉल्यूम इज आर्बिट्रेरी, और मैथमेटिकली यू कैन से दैट del tau does not equal to 0. When del tau does not equal to 0, then del dot del cross A is always 0. So this is the result. Del dot del cross A is equal to 0, or divergence of curl is always 0. So you can say this statement as divergence of curl is always 0, always in the sense because volume is arbitrary। और रिवर्सली आप इसे कैसे कह सकते हैं कि कर्ल इज ऑलवेज डाइवर्जेंस लेस, कर्ल इज ऑलवेज डाइवर्जेंस लेस, यानी कर्ल जब कोई भी वेक्टर फंक्शन कर्ल करेगा तो जो डाइवर्जेंस होगा वहां वो हमेशा क्या होगा, जीरो। ओके, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो, यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं। अगर डाइवर्जेंस हो रहा है कहीं तो कर्ल, अगर कर्ल कर रहा है, ये कर्ल कर रहा है कोई फंक्शन, वेक्टर ए कर्लिंग कर रहा है, तो डाइवर्जेंस उसका हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। दिस इज द फिजिक्स।
नाउ वही कॉन्सिक्वेंसेस फिर से हमारे पास है कि अगर फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ सरफेस फॉर अ गिवन पाथ, और दो कॉन्सिक्वेंसेस ये हमारे पास है कि अगर डेल क्रॉस ए आपके पास कोई वेक्टर फंक्शन देता है v, कोई भी वेक्टर फंक्शन देता है v, तो उसका डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होगा। या फिर हम इसी बात को कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर फंक्शन जिसका डाइवर्जेंस जीरो है उसको हम डेल क्रॉस ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी वेक्टर के कर्ल के रूप में उसे हम लिख सकते हैं। सी हियर, अगर आप इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट पे आना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे कि अगर किसी वेक्टर फंक्शन का कर्ल आपको कोई एक वेक्टर देता है v, तो उस वेक्टर का डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होगा। और यहां से यहां जाना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे कि अगर किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस हमेशा जीरो है तो उसे हम किसी भी वेक्टर फंक्शन के कर्ल के रूप में लिख सकते हैं। और ऐसा अगर कोई वेक्टर है हमारे पास जिसको हम कर्ल के रूप में लिख सकें तो वो जो वेक्टर फंक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर पोटेंशियल। पोटेंशियल इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी बट नॉट द नोटेशन वेक्टर पोटेंशियल। पोटेंशियल इज अ वेक्टर, वी स्टडीड इट दिस कंसेप्ट इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। जब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे तो हम इससे वहां फेमिलियर होंगे। ओके, तो हमने 3 ऑपरेशन आपको करके बता दिए जो डेल के ट्वाइस ऑपरेशन है। फंडामेंटल थ्योरम में हमें डेल केवल लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिलता है, राइट हैंड साइड हमेशा डेल लेस है। और जो लेफ्ट हैंड साइड है फंडामेंटल थ्योरम्स की, उनके लेफ्ट हैंड साइड में भी डेल को केवल एक बार ही ऑपरेट किया गया है। अगर हम डेल को 2 बार ऑपरेट करें तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो हमने 3 रिजल्ट डिस्कस कर दिए। द फर्स्ट वन इज द लाप्लासियन, द सेकंड वन हियर इज these are the operations. The first one is Laplacian, the second one is cog, that is curl of gradient is always zero, and the fourth one is doc, that is divergence of curl is always zero. So we have remaining only 2 operations. This one, sorry, no, this one no, okay, this one and this one. Okay, so let's move towards these topics. तो अभी हम यहां पहुंच गए हैं कि ये हमारे पास एक ऑपरेशन है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, गोड। ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस बहुत ही कम, रेयरली यूज्ड इन फिजिक्स, बहुत कम। और हाँ, एक बात आप बहुत ध्यान से इस बात को देख लें कि ये जो ऑपरेशन जिसको हम ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस गोड बोल रहे हैं, इसका ऑपरेशन ये है डेल ऑपरेटिंग ऑन डेल डॉट ए, यानी डेल डॉट ए डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस एक स्केलर को देगा, यानी ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर को रिजल्ट करेगा। और डेल जब किसी स्केलर पे ऑपरेट होता है तो वहां जो कंसेप्ट आता है वो ग्रेडियंट का आता है। तो बेसिकली ये क्या है, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस। डोंट कंफ्यूज इट बाय दिस ऑपरेशन del dot f. This is Laplacian, this is Laplacian, this is not Laplacian. Where is the dot? That is the thing, dot is here. Okay, so this one, and last one is curl of curl, COC, curl of curl, del cross del cross A. This is the operation, and
you can see result on your screen. Result is this. You can find this in this way. This function is this operation. So God में से अगर del square a को आप subtract कर दें, a is any vector function, तो आपके पास ऑपरेशन आएगा कर्ल ऑफ कर्ल. These two operations are rarely used in physics. Okay, so today we are discussing about the applications of integral theorem. We are studied so far 4 fundamental theorems, which are fundamental theorem of calculus, fundamental theorem of gradient, fundamental theorem of divergence, or more conveniently Gauss's divergence theorem, and the last one is fundamental theorem of curl, or well known as Stokes theorem. तो लिमिटेशंस ये है या ऑपरेशंस इस तरह से हैं कि जो डेल का ऑपरेशन है वो केवल इन सारी जितनी हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं इनके लेफ्ट हैंड साइड में केवल एक बार ऑपरेट होता है डेल ऑपरेटर. लेकिन अगर हम डेल ऑपरेटर को 2 बार ऑपरेट कर दें तो उससे जो रिजल्ट हमारे पास आते हैं दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉसियस डाइवर्जेंस थ्योरम. ओके, सो students, that's all for now. We'll meet you in the next one. Thank you.